Very good afternoon to all of you, dear students. Today we are going to discuss topic kinematics of moving fluid, principle of continuity and Euler's equation. So let's go for it. First introduction. What is the mention? What is the kinematic of the fluid? Actually, first हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो द्रव गतिकी होती है या जो हाइड्रोडायनेमिक्स होता है वो होता क्या है. It is a fluid mechanics. Here we study the mathematical descriptions of the fluid. Okay? हम यहाँ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन समझेंगे फ्लूइड जो है वो जब फैलता है वो जब फ्लो होता है तब. So now the very important 2 point is here. One is the ideal fluid and second is the viscous fluid. Everyone know कि what is the ideal fluid and what is the viscous fluid. Ideal fluid, that means non-viscous and incompressible fluid, it's called the ideal fluid. जो असंपीर्ण तथा अशान हो, पर ऐसा होता नहीं है कि जो फ्लूइड होता है, जो तरल होता है, वो असंपीर्ण पूरी तरह नहीं होता और अशान भी नहीं होता. अब जब आप जानते हैं कि क्या होता है कि क्या होता है ये विस्कस या शांता क्या होती है या इनकम्प्रेसिबिलिटी या असंपीडितता से आप क्या समझते हैं. व्हाट इज द विस्कस? विस्कस तो आपको मालूम होगा कि हर किसी फ्लूइड जब फ्लो होता है तो उसके जो डिफरेंट जो नीचे के लेयर्स होते हैं वो एक अपोजिंग फोर्स या एक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपर लेयर पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, लगाते हैं. दैट इज वाई द फ्लो जो होता है उसकी स्पीड को कम करता है. तो दैट मीन्स फ्लूइड जो होगा वो विस्कस होगा ही. और दूसरी बात इनकम्प्रेसिबल, मतलब क्या होता है, जो कंप्रेसिबल आप जानते हैं कंप्रेस करना मतलब जिसके आकार या आयतन में परिवर्तन की बात हो रही है, यदि वो ना हो वो बात की जाए तो ऐसा भी संभव नहीं है. बट आइडियल कंडीशन में हम ये मान सकते हैं, वी कैन assume it for ideal condition. तो देखिए we have a figure or we have a picture of the fluid can change their path, fluid can change their way. Okay, so different type of the flow of the fluid. Here we see the types of the flow of the fluid: streamline and turbulent flow. There are the also streamline flow is also called the laminar flow, and turbulent flow, that means the zigzag flow. So streamline according to their name, laminar according to their name. ऐसा फ्लूइड जो जब फ्लो होता है तो उसका एक पार्टिकल जिस जिस पॉइंट से होकर जाता है फ्लूइड का, दूसरा भी उसी पॉइंट से होकर जाता है, तीसरा भी इसी पॉइंट से होकर जाता है. जैसे एक सिंपल सा नाला जो है वो स्थिरता से धीरे धीरे बह रहा है, उसे हम कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो. ओके. और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो जैसा कि नाम है कि स्पीड बहुत ज्यादा होगी, पाथ जो होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, जिगजैग हो सकता है. दैट मीन्स जैसे झरने वगैरह आप देखते हैं, उस झरने में जो पानी होता है वो इधर उधर फैलता है, ठीक वैसा ही होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह भी इसे हम कहते हैं. नाउ गो टू द डेफिनेशन. So when a fluid is flow such that each particle of the fluid passing through a point flow the path which have been taken by the previous particle. Okay, जो अभी मैंने बताया. But remember the basic difference between this two flow is a critical velocity. What is the critical velocity? The minimum velocity. Okay, below this velocity the flow of the liquid is streamlined, but after above this velocity the flow of the liquid or flow of the fluid is turbulent flow. That is called the critical velocity, that means vc. So critical velocity से अगर नीचे velocity है fluid की तो वो streamline full flow होगा, लेकिन अगर उससे ऊपर अगर velocity हो जाती है then this velocity is called the turbulent flow. So when the velocity of the flow is greater than from the critical velocity, which I said, then the flow of the liquid or flow of fluid is called the turbulent flow. Now motion of the particle is zigzag and irregular in turbulent flow. Let's go for the figure. Which type of streamline flow and which type of the turbulent flow? कैसा होता है ये रैखिक या कैसा होता है ये विक्षुब्ध प्रवाह? देखिए इस डायग्राम से आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा. ये लेमिनार फ्लो का डायग्राम है और ये टर्बुलेंट फ्लो का. टर्बुलेंट फ्लो में देखिए कैसा जिगजैग, कोई पाथ नहीं है, कहीं भी जा सकता है पानी. लेकिन जो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो है उसमें एक के पीछे एक के पीछे एक ही चल रहा है. ओके.
Now, equation of continuity. Actually, the main point is the equation of continuity. सांतत्य समीकरण के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, क्या होता है ये equation of continuity या सांतत्य समीकरण? एक्चुअली सांतत्य समीकरण हमें एक जो मैसेज देता है वो ये है कि जो एरिया होता है और जो वेलोसिटी होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। आपको ये चीज दिमाग में बैठानी है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर द एरिया इज हाई दैट मीन्स फ्लो ऑफ द लिक्विड इज स्लो, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज स्लो, बट वेयर द एरिया इज वेरी लो then the velocity is very high. Simple. In daily life we use we wash our car and our bikes, our cycle, then we use the pipe with a null, and when we flow the normal pipe, we serve the water, then we get the speed of the water flow is not very high, but जब भी हम उस पाइप में उंगली लगाते हैं तो हम उसके एरिया को कम करते हैं, और चूंकि एरिया जब कम होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। यदि ये पाइप का देखें, मुंह है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर मैंने इतना लिया है तो ये स्पीड होगी कम, बट मैंने इसे उंगली से इतना दबा दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बताता है हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन। व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? So here is the statement of this continuity equations. When an ideal fluid, remember dear students, ideal fluid flow in streamline, okay, condition through a tube, non-uniform cross section area tube, that means tube is not the same cross section area, then the product of the area of the cross section and the velocity of the fluid is constant. Mathematically AV is equal to constant. Actually this is the equation of continuity. Now see this figure. This is the actually figure. This is a clear figure. Okay, non-uniform cross-section area AB is a tube. Okay, in one side the velocity of fluid is V1. Okay, cross-section area A1. Here cross-section area A2 and velocity is B2. Now in A point, जो A सिरा है उस पर जब लिक्विड जो प्रवेश करता है वो 1 सेकेंड में V1 दूरी करता है। देखिए डिस्टेंस जो है वो V1 है, ठीक है, V1 इज डिस्टेंस, 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, V1। समझ में आ रहा है? V1 को आप दूरी कह रहे हो, V1 को आप डिस्टेंस कह रहे हो। क्लियर है? तो प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन कितना होगा, तो एरिया फर्स्ट में होगा A1V1, करेक्ट है। मास अगर निकाले तो मास इक्वल टू क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व, दैट मीन्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सपोज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, देन A1V1 रो। सो बाहर भी तो उतना ही द्रव निकलेगा। अगर आश्यान द्रव है भाई, आइडियल फ्लूइड है, तो जितना आप डालोगे पानी एक सिरे से दूसरे सिरे से उतना ही निकलेगा। सो A2V2 रो, ओके, सेम। सो A1V1 रो एंड A2V2 रो इज इक्वल बिकॉज द मास, बाहर निकलने वाला पानी और अंदर आने वाला पानी दोनों बराबर है भाई। सो रो कैंसिल, वी हैव A2V2 is equal to A1V1 or AV is equal to constant. A is reciprocal of V. This is the actual result जो हमें जानना था कि continuity equations हमें बताता क्या है। Correct? Next, Euler's equation. What is the Euler's equations? Another important topic of our fluid or hydrodynamics. एक्चुअली यूलर्स इक्वेशन जो है वो रिलेशन बताता है वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में, कि वेलोसिटी और प्रेशर में जनरली क्या रिलेशन होता है। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे, लाइक बेर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, सपोज वी हैव अनदर ट्यूब, वी हैव, ओके, अब इसमें जो फ्लो हो रहा है लिक्विड वो एक्सेलरेट है, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस। सो डेफिनेटली अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो प्रेशर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर हमने माना कि इस जहां वो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में जो दाब प्रवणता है, आपने प्रवणता शब्द जो मैंने यहाँ यूज किया है, दैट मीन्स ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो प्रेशर चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंस। तो हमने एक बहुत स्मॉल पार्ट ए बी यहाँ पर लिया है जिसकी लेंथ हमने ले ली है dx, और हम उस पर अगर दाब प्रवणता बताते हैं dp/dx। ओके, जल का प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है, चलिए यहाँ से फ्लो हो रहा है फ्लूइड, कोई बात नहीं है, करेक्ट है ये, ठीक है, हमने ले लिया। नेक्स्ट, ए से बी पर दाब घटता है, हमने माना ये, ठीक है।
ए पर दाब अगर हमने मान लिया P है तो B पर दाब डेफिनेटली कम होगा। तो कितना होगा? तो हम दाब यहां से यहां तक की दाब प्रवणता देख लेते हैं, वो है dp बाई डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स, इतना कम हो जाएगा B पर। तो एग्जैक्ट B पर क्या होगा? P माइनस, है ना, B पर होगा P माइनस dp बाय डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स, ये होगा। दिस वैल्यू इज हेयर एक्चुअली B पर दाब। अब अगर हमने कहा कि एरिया ए है नली का, तो ए बी पर दाबांतर के कारण जो बल लगता है वो बल क्या होगा? बल होगा जो ए पर दाब था P और जो B पर दाब है वो, तो दोनों का दाब का अंतर निकाला इंटू ए, क्योंकि बल बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, दाब गुणित क्षेत्रफल भी होता है, जो कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई पीपी कैंसिल होने के बाद। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। तो ये एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स का, आपको ध्यान रखना है, dp बाई डी एक्स, ये वाला इक्वेशन मैं फिर से दोहराऊंगा इसको। अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो A से B में वेग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि दाब कम हो रहा था। आपने बताया था पहले मुझे कि A से B से दाब घट रहा है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि नॉलेज से हमने पढ़ा है P इज रेसिप्रोकल ऑफ V, दैट मींस P बढ़ेगा तो V कम होगा। तो dv बाई डी एक्स डॉट डी एक्स, इतनी वेलोसिटी होगी यहाँ पर, तो B पर जो प्रवाह का वेग होगा वो बढ़ेगा। देखिए माइनस नहीं हुआ, V प्लस dv बाई डी एक्स। यहाँ देखिए dp बाई डी एक्स जो था वो क्या हो गया था? माइनस हुआ था, यहाँ क्या हुआ? वो बढ़ गया। अब वेग बढ़ा है, कितना बढ़ा भाई? इतना था, उसमें से पहले वाले को घटा दीजिए, ये वेग में वृद्धि हुई, वो दाब में कमी थी। अब A से B तक की दूरी डेल्टा एक्स तय करने में डेल्टा टी समय लेता है, तो वेग का फॉर्मूला हम डेल्टा एक्स या डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, त्वरण को dv बाई डी एक्स लिखते हैं, करेक्ट। AB का द्रव्यमान अगर हम निकालना चाहें, जो AB एरिया है उसका, तो क्षेत्र आयतन गुणित घनत्व, आयतन A है और लंबाई dx है, तो रो इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब AB भाग में तरल पर लगने वाला बल निकालना चाहते हैं, तो बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन लग रहा है, क्योंकि ये सेकंड के साथ हम इक्विलिब्रियम करेंगे जो फोर्स आएगा उसमें, कि दाब में वृद्धि, दाब में कमी और वेग में वृद्धि। देखिए ये 2 और 1 से हमने दोनों को इक्वल किया, दोनों फोर्स को, ये कर लिया दोनों को इक्वल, ठीक है। ये दोनों फोर्स हो गए इक्वल। अब कैंसिल जो होना था हुआ, माइनस को हमने दे देता dp बाई डी एक्स इक्वल टू रो डीवी डी टी। रो डीवी बाई डी टी को हमने देखिए कुछ और लिखा है, इसको ध्यान से देख लीजिए, चेन रूल का हमने इस्तेमाल किया है। dv बाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स कैंसिल, dv बाई डी टी माइनस dp बाई डी एक्स इक्वल टू रो वी dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स इसलिए क्योंकि dx बाई dt को आपने क्या लिखा है? v लिखा है, करेक्ट। तो रो वी dv बाई डी एक्स प्लस ट्रांसफर किया तो dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0, दैट इज द यूलर इक्वेशन। बट आफ्टर फॉर इंटीग्रेशन dx कैंसिल, ट्रांसफर करेंगे तो उसके बाद dp रो dv इंटीग्रेट किया तो इसका तो 1 का होगा, तो 1 बाय रो कॉमन हो जाएगा, v का v स्क्वायर बाय 2 होगा। लेट्स गो फॉर इट। आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव this one limit is v1 to v2 and p1 to v2, we get this one, and last this is the mean. Actually p is equal to 1 by 2 rho v square, or p is equal to minus of 1 by 2 v square, rho v square. This is the Euler's equation, relation between velocity and pressure. अगर pressure बढ़ेगा तो velocity कम होगी, क्योंकि negative है, correct. That's all. So next class में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।